Hello, very good morning, my dear students. Welcome to the social science lecture. Today, we are going to start unit number 9, Fundamental Rights, Duties, Directive Principles of State Policy. So, in this today's chapter, before going to discuss, I would like to tell you about the chapter number 8. In the chapter number 8, which is about the constitution, in that chapter I already told you that some of the fundamental truth which is in the constitution is the fundamental rights, because without the fundamental rights there is no effective execution of constitution. So let us start this chapter, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles of State Policy. So in the previous chapter we have studied Indian Constitution, preamble and important pillar, as well as the specific characteristics. In this chapter we will study about the other important characteristics of Constitution, that is fundamental rights, duties and directive principle of state policy. Before going to discuss fundamental rights, let us discuss human rights. Human rights are widespread to the entire world and it is established by the United Nations. So first of all we need to know that what is rights. Rights मतलब अधिकार. अधिकार एक ऐसी चीज़ है कि जो ना सिर्फ इंसानों को अपने आप का होने का ना एक आत्मविश्वास दिलाते हैं, बल्कि उनके विकास के लिए समाज के अंदर और एक ऐसा पर्यावरण बनाने के लिए कि जिसमें वो ग्रो हो सके, उसके लिए भी ज़रूरी है. इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री द सिटीजन्स आर कन्फर्ड विथ बेसिक राइट्स. हर एक देश में उसके नागरिकों को कुछ कुछ अधिकार दिए गए हैं. अ पर्सन इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कैन एक्सपीरियंस द बेसिक राइट्स. द प्रोटेक्शन ऑफ दिस राइट्स आर एश्योर्ड बाय सोसाइटी एंड नेशन एज वेल. The person by his birth owns right, which are his or basic rights, which are known as human rights. तो ह्यूमन राइट्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब भी कोई जन्म लेता है इंसान, तो उसके बाय बर्थ जो उसको अधिकार मिलते हैं उसे बेसिक ह्यूमन राइट कहा जाता है. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड ह्यूमन राइट्स ऑन 10th of December 1948. यूएन की जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट्स डिसाइड किए और इसी विचार के अंतर्गत 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे यानी कि मानव अधिकार दिवस तरीके के रूप में मनाया जाता है. फ्रॉम द ग्लोबल अनाउंसमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, सर्टेन बेसिक एंड इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स आर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अभी यूएन ने एक्सेप्ट किया था तो उसका समावेश हमारे भारत के अंदर भी हुआ, यानी कि भारत के संविधान के अंदर. So, these rights are protected in a dignified way. सम्मानजनक रूप से इन सभी अधिकारों का पालन होना चाहिए. Thus, those human rights which are included by Constitution of India are known as fundamental rights. यानी कि भारत के संविधान के अंदर जो मानवाधिकार का समावेश किया गया है उसे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूलभूत अधिकार गिना जाएगा या तो कहा जाता है. The human rights proclaim the human beings to live in a dignified way. एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए हर एक नागरिक को अपने अधिकार मिलने चाहिए. For the existence of human being, the basic needs, food, clothes, shelter, education and health should be received in a dignified and respectable way. Democratic country allows its citizen to enjoy equal rights for multifaceted development. The state guarantees such a conducive environment wherein one has protection of fundamental rights, a true identity of democratic system. यानी कि लोकशाही राज के अंदर अगर लोगों का कल्याण करना है तो उसको अपने मूलभूत अधिकार देना आवश्यक है. तो आइए चलिए जानते हैं व्हाट आर दे, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर. यू आर वेरी अवेयर अबाउट दिस फंडामेंटल राइट्स बिकॉज इन 8th standard it is also covered. There are six fundamental rights are there. These 6 rights are as discussed here. The first right is right to equality, समानता का अधिकार. Right to freedom, स्वतंत्रता का अधिकार.
तीसरा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के सामने अधिकार। फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिफ्थ वन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि आपके अगर किसी भी मूलभूत अधिकार का पालन ना हो रहा हो या तो ना मिल रहे हो तो उसके सामने आप कोर्ट में जा सकते हैं। इट इज़ योर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, तो आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है समानता का अधिकार, सब समान। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कायदे के सामने सभी लोग समान, are included in right to equality. This fundamental right is the major foundation of all other rights and privileges guaranteed to the Indian citizens. जो ये समानता का अधिकार है, ये सबसे बड़ा स्थापित अधिकार है हमारा, कि जिसकी वजह से हम भारतीय नागरिक कहलाते हैं। It is one of the chief guarantees of the Constitution of India. ये सबसे बड़ी खातरी देने वाला अधिकार है। Thus, it is imperative that every citizen of India has easy access to the courts to exercise his rights to equality. इसलिए भारत के हर एक नागरिक को इस समानता के अधिकार का अगर कहीं पे हनन हो रहा हो या तो उसका पालन ना हो रहा हो तो उसके सामने कोर्ट में जा सकता है। According to this right, no person shall be shown favoritism on the basis of color, caste, creed, language, etc. यानी कि इस अधिकार के अंतर्गत कोई भी इंसान किसी भी इंसानों के साथ दूसरे इंसान के साथ रंग, जात, पात, भेद और जाति के आधार के ऊपर भेदभाव नहीं करेगा। लॉ इज इक्वल टू ऑल, फ्रॉम द पियून टू द प्राइम मिनिस्टर। इफ दे एक्ट अगेंस्ट लॉ, they are treated equally and are bound to the general court of law. However, the president and the governors have certain privileges. यानी कि एक छोटे इंसान से लेके हमारे प्रधानमंत्री तक सभी के लिए कायदा समान है, लेकिन प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति और गवर्नर को कुछ कुछ इसमें छूट छाट दी जाती है। इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टांस द लॉ शुड बी प्रिवेल इक्वली। There should be no discrimination or specific favoritism shown to any particular person or class. Every law should be equally disseminated. Every person shall have equal admittance to public places like shops, restaurants, hotels, public entertainment places, have equal access to roads and lakes and use of public wells and bathing ghats. यानी कि इस अधिकार के अंतर्गत हर एक लोगों को शॉप्स, रेस्टोरेंट, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जाने का अधिकार है। वहाँ पे जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता या तो उसे कोई अटका नहीं सकता। However, the state has the right to make any special arrangement for women and children or for the development of any socially or educationally backward class or scheduled caste or scheduled tribes. अगर कोई सामाजिक और आर्थिक रूप से पछात वर्ग है या तो कोई आदिवासी वर्ग है या तो अनुसूचित वर्ग है तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कर सकते हैं। No citizen shall be discriminated on the basis of race, caste, religion, creed, descent or place of birth in respect of any government services and higher education under the state. कोई भी भेदभाव राज्य में चल रही शिक्षा के अंदर या तो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर नहीं चलाया जा सकता। In matters of state public services, equal opportunities have to be offered to all the citizens. However, the state is given permission to make decision regarding specific qualification for said service. यानी कि जब भी नौकरियां के बारे में आवेदन लिए जाए तो तभी उसके अंदर भी हर एक वर्ग को समानता मिलनी चाहिए। As a guarantee to social justice and personal dignity, untouchability is abolished and its practice in any form is prohibited and a punishable offense. अछूतता, जो पहले के ज़माने में कुछ कुछ जातियाँ ऐसी थी कि जिनको अछूत माना जाता था, कि जिनको छूना भी एक पाप गिना जाता था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाबा साहेब आम्बेडकर ने एक ऐसा स्पेशल प्रोविज़न डाला कि जिसके अंतर्गत अनटचेबिलिटी, अछूतता को एक पनिशेबल ऑफेंस यानी कि शिक्षात्मक दंड के रूप में माना गया। यानी कि कोई भी इंसान अछूतता को बढ़ावा नहीं देगा, अगर वो ऐसा करता है तो वो सज़ा के लिए उसे तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है। Titles and epithets which create artificial discriminations in the society have been removed. यानी कि जो
उपाधि और विशेष नाम दिए जाते थे, जैसे कि सर भगवत सिंह जी है तो सर लगाया जाता था, तो ऐसे सभी अधिकार किसी को भी नहीं दिए गए और ये चीज़ बिल्कुल रद्द कर दी गई है। द एडजेक्टिव यूज्ड बिफोर नेम लाइक सर, जैसे मैंने कहा, दीवान जी, राय बहादुर, रिमूव्ड। पहले के ज़माने में ऐसे खिताब दिए जाते थे कि सर भगवत सिंह जी, दीवान जी, राय बहादुर, तो ऐसे खिताबों को भी अभी निकाल दिया गया है। After independence, the government, in order to felicitate special contribution and achievements of individuals in various fields, gives special awards like Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri. Paramvir Chakra is awarded in military services. यानी कि इसके बदले में भारत के किसी भी लोगों ने कोई एक क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है तो उसको भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री इन खिताबों से नवाजा जाएगा। एडजेक्टिव लाइक जनरल, मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल आर एडेड बिफोर नेम्स इन मिलिट्री सर्विसेज विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ वायोलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। यानी कि जो फौज के अंदर दिए जाते हैं नाम, उसको समानता के कायदे के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। द एम ऑफ दिस राइट इज टू फॉर्म एन इक्विटेबल सोसाइटी एंड देयरबाय एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ। इससे कहने का मतलब यही होता है कि एक समान समाज का निर्माण हो और एक कायदे का शासन पूरे भारत में विस्थापित हो। ठीक है, उसके बाद है राइट टू फ्रीडम। तो स्टूडेंट, राइट टू फ्रीडम देखने से पहले वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ता है उसमें। तो अभी जो शॉर्ट है राइट्स, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के सामने अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशन का काम ही यही है, उसका एम ही यही है कि हर एक नागरिक को समानता दी जाए और उसे किसी भी तरीके से के शोषण से बचाया जाए। सो अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का शोषण कर रहा हो तो वो कोर्ट में जाके जस्टिस मांग सके। दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू दिस राइट। यानी कि इस प्रोविज़न जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रजरी, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर आर बैंड। हम जानते हैं कि कई बार बच्चों के पास से काम लिया जाता है। वेट प्रथा जिन्हें कहवाई, मतलब छोटे बच्चों से मजदूरी करवाना, उनको सफिशिएंट अमाउंट में पैसे ना देना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को इकट्ठी करके बाद में उसका देह व्यापार करना। तो ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर बैन लगा दिया गया है। द वायोलेशन ऑफ दिस राइट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। पनिशेबल ऑफेंस मतलब शिक्षात्मक कार्यवाही होती है अगर आप इस कायदे के विरुद्ध काम करते हो तो, इस अधिकार के विरुद्ध काम करते हो तो। इलीगल ट्रेड ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, फोर्स्ड लेबर और इम्पोज्ड स्लेवरी, work without pay and the old drudgery system has to be ended through this right. To take work from any person without paying them or paying them less than minimum wages, forced or imposed labor is a punishable act. यानी कि कोई भी इंसान को बिना पैसे के काम के ऊपर रखना या तो उसे उसके तय किए गए वेतन से कम वेजेस देना, उसके लिए भी कायदे के अंदर अधिकार है। Any child under the age of 14 cannot be made to work in a factory, mine or any dangerous profession, garage, hotel or cannot be employed as a household servant. कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल या तो उससे कम है, उसको कहीं पर भी फैक्ट्री में, खदानों में या तो कोई ऐसा खतरनाक काम है वहाँ पे, गराज में, होटलों में, कहीं पर भी काम के ऊपर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि 14 साल तक हमारे गवर्नमेंट ने शिक्षा जो है वो कंपलसरी और फ्री कर दी है। Under the Prohibition of Child Labor Act, all these are punishable offences. Mandatory services can be short from any person for the purpose of public welfare of the state military services in any fields irrespective of religion, gender, caste or class, with or without remuneration. Mandatory services can be short, मतलब जो कंपल्सरीली देने वाली सर्विसेज है, जो लोगों के कल्याण के लिए मिलिट्री के अंदर दी जाती है, वो कभी भी शॉर्ट की जा सकती है। शॉर्ट मतलब उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। दिस इज द प्रोविजन अंडर दिस। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फॉलो एनी रिलीजन ऑफ चॉइस, कैन प्रमोट एंड प्रोपोगेट द सेम, इज मेंशन्ड इन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फॉलो एनी रिलीजन ऑफ चॉइस, कैन प्रमोट एंड प्रोपोगेट, यानी कि भारत के अंदर रहने वाला कोई भी इंसान खुद के धर्म को पसंद कर सकता है, उसको प्रमोट कर सकता है यानी कि उसे फैलावा कर सकता है, और प्रोपोगेट द सेम यानी कि उसको बढ़ावा भी दे सकता है एज द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान में ये एक कलम है कि कोई इंसान अपने पसंद से धर्म को स्वीकार कर सकता है, उसको बढ़ावा भी दे सकता है. But this right is to be enjoyed within permissible limits so that it does not affect the freedom of public administration, morality and health of the society. The religious gathering, offerings or prayers are not included in this. यानी कि इस अधिकार का भी एक लिमिटेड प्रोविजन के अंदर क्षेत्र है कि जिसमें इसका पालन किया जाता है. ठीक है. The state of India does not have any religion of its own or the Indian state is not run as per the principle of any religion or sect. यानी कि भारत जो है उसका कोई धर्म नहीं है. भारत देश एक सेक्युलर राष्ट्र है. जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर समझा सेक्युलरिज्म किसे कहा जाता है. एक ऐसा राष्ट्र के जिसका कोई धर्म ना हो, एक ऐसी सरकार के जिसका कोई धर्म ना हो, और कोई सरकार भी कोई एक धर्म के सिद्धांतों को मान के नहीं चलती. The state cannot interfere in the religious matter or religious belief of any group. The religious group have been given the freedom to establish any religious organization and can manage the administer them for religious and philanthropic aims. कोई भी इंसान या तो ग्रुप, लोगों का समूह ऐसे धार्मिक संस्थानों को खड़ा कर सकते हैं और उसको चला भी सकते हैं. The state cannot use the funds collected through the public taxes or public fund for the benefit and development of any specific religious and sect. कोई भी राज्य जो है लोगों के टैक्सेस में से आए हुए पैसे में से या तो लोगों के पैसे में से कोई धर्म को जो है वो चंदा या तो कोई भी दान नहीं दे सकता. The educational institution running on government grant cannot impart religious education or compel the students to participate in any religious education or attend any religious meet. यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा शिक्षण संस्थान चलते हैं उसके अंदर कभी भी धार्मिक शिक्षण नहीं दिया जाएगा और उनके स्टूडेंट्स को कभी भी कोई भी धार्मिक विधि के अंदर कंपल्सरीली जॉइंट होना इसके ऊपर भी फोर्स नहीं किया जाएगा. सो ये था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. नेक्स्ट राइट के बारे में इसके बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू.